What is the पहले state क्या था? What is the state? Lord, your lordship has stayed the impugned selection list, finding it to be contrary to the very concept of service jurisprudence that the merit cannot be marginalized in any circumstances or any spaciously whatsoever, my lord. Yes. Now, Lord, the facts leading to filing of the present petition was such. We are hearing the finally, है ना? अभी तुम Yes, vacating yes, नहीं yes, finally, yes, है? yes, yes, yes. I am ready, my lord. I am ready. Yes, yes. Annexure P. The petitioner, my lord, before your lordship was an aspirant for appointment on the various posts which have been advertised simultaneously by the respondent number 3 employee selection board in group 4, my lord. The post in the instant case is that of assistant grade 3, my lord. Yes. And I request your lordship, I have uploaded in the ERP, my lord, it's a bulky advertisement oblique rule book which the respondent number 3 board has issued for this purpose, my lord. In the ERP, my lord, Yes. it's named as Jitendra Mewali rule. This is the complete rule book or the advertisement which has been issued by the respondent number 3 board. It's a complete Bible. It's a complete Bible, my lord, as far as recruitment to the present post is concerned, my lord. Yes. 2000 is governed by 2013 rules. Yes, lordship. Now, my lord, kindly see chapter 1, my lord. For the convenience of my lord, I have bookmarked it. And नीचे पेज नंबर भी है my lord. नीचे अगर आप देखेंगे बुक मार्क भी किया है मैंने. और अगर आप नीचे देखेंगे बॉटम में तो नंबर भी है. तो पेज नंबर 3 that it starts chapter 1 starts from page rule number page number 3. Yes, yes. Now, Lord, this chapter 1 is nothing but the joint services, joint Madhya Pradesh Junior Service, Joint Qualifying Examination Rules 2013, framed in exercise of power conferred by 309 of the Constitution of India by the state government. Yes. Now, few definitions which would be relevant for our purpose, my lord. In 2 may kindly be seen, my lord, the first. न्यूनतम अहर अंक से अभिप्रेत है. मनिष्ठ स्वयं सौ में परीक्षा में अहर होने के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक. So that refers to cut-off marks or the minimum marks, my lord, I should say. Now, my lord, kindly appreciate the definition of the term सफल अभ्यर्थियों की सूची, that is list of successful candidate. 2(6). सफल अभ्यर्थियों की सूची से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश कनिष्ठ सेवा स्वयं परीक्षा में न्यूनतम अहर अंक तक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की अवरोही क्रम में सूची. दिस इज मटेरियल, माय लॉर्ड. अवरोही क्रम. इसका मतलब क्या है इंग्लिश में? My lord, this is the list in the order of merit is to be prepared in respect of all those candidates who have acquired or qualified the minimum cut-off marks. ये कहाँ लिखा है कि मिनिमम कट ऑफ मार्क्स के हिसाब से बनेगा ये अगर आप देखेंगे 2(ख) में न्यूनतम अहर का अंक डिफाइंड है और 2(6) में ये लिखा है कि सफल अभ्यर्थियों की सूची से अभिप्रेत है मध्य परीक्षा में न्यूनतम अहर अंक तक प्राप्त करने वाली अभ्यर्थियों की अवरोही क्रम में सूची. इन द ऑर्डर ऑफ इन द असेंडिंग ऑर्डर of the merit, descending, that this is to be prepared, my lord. Descending order of merit up to the minimum. From the minimum, all those who have qualified from minimum marks, their name should be arranged in the order of merit. Up to minimum. Up to minimum. कोई descending order पैसा ले होगा तो up to minimum होगा. Yes. Up to minimum. Minimum के ऊपर जितना भी आया है वहां से आपको
counting from the person who has scored more marks, then by going down by the time it reaches to the minimum qualifying marks for the examination. Yes. Now, kindly see, paragraph 5 contains aharkari ank, rule 5, so rather. Yes. For general, it is 50%. Hmm. For SC, ST and OBC, it is 40%. Yes. And if I may call upon your lordship to see paragraph 5(1) का लास्ट की 3 लाइन किंतु से, किंतु उम्मीदवारों का चयन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बनाई गई सूची में से मेरिट के आधार पर किया जाएगा. लॉर्डशिप हैज इट. Then, my lord, the most important rule would be rule 10. Page number 8, internal page number 8, rule 10. Rule 10(1) says कि online application form only shall be entertained, and 10(2) is material. 10(2) says, my lord, अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए विकल्प दे सकेगा और वह अपनी प्राथमिकता उल्लेख कर सकेगा और विभाग ऑब्लिक कार्यालय और पद के लिए भी अपना अधिमान चिन्हित कर सकेगा, वेटेज. This is the liberty which a candidate enjoys in case where examination is held for more than one post, as has been there in the instant case. Now, rule 11, my lord. Now, this is the heart and soul of this litigation, my lord. Rule 11 as to how the list is to be prepared. Yes, Kindly please. see 10(11)(1), my lord, very material. बोर्ड सफल अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर, काइंडली मार्क दिस एवरी वर्ड इज मटेरियल. आवेदित पद अनुसार प्रावीण्य ऑब्लिक प्रतीक्षा सूची जारी करेगा. If I request your lordship to read it along with 10(2), sub-rule 2 of rule 10 and sub-rule 1 of rule 11, then only proposition which emerges from this combined reading of both these rules is that a candidate can opt for more than one post. He can reflect his choice also, order of preference also. And it is incumbent upon the board to issue the list of successful candidates based upon the merit. 10(2) read with rule 11(1). प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट एक ही रहेगी, कैटेगराइज वाइज रहेगा हर एक. वो भी आगे आएगा मतलब. पर पहला ये है कि प्राप्त अंकों के आधार पर सूची बनाई जाएगी. दिस इज क्लियर फ्रॉम 11(1). यस एक लिस्ट बनेगी कॉमन. यस. अब आगे देखें फर्दर में. नहीं, आवेदित पद के अनुसार बनेगी, मतलब जितनी पोस्ट मैंने एडवर्टाइज की है, जितनी पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया है, उन सभी पोस्ट की मेरिट सूची आपको बनानी पड़ेगी सेपरेटली. बोथ इन अदर वर्ड्स आल्सो, उन्होंने जितने पोस्ट एडवर्टाइज किए उनकी सबकी सूची इन ऑर्डर ऑफ मेरिट. नहीं, उन्होंने बनाई नहीं. दैट इज व्हाई द प्रॉब्लम. उन्होंने नहीं बनाई. नाउ 11(2), अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई भी उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित ओपन सूची में स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसकी अनारक्षित श्रेणी में गणना की जाएगी और ऐसे उम्मीदवारों को उसके संबंधित आरक्षक प्रवर्ग में नहीं जोड़ा जाएगा. द जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेरिट. दिस ऑल्सो सिग्निफाइज the merit happens to be the tilting factor.
meaning thereby if any person belonging from reserve category is able to score marks more than that of meant for unreserved category, then he shall be considered as an unreserved category purpose for the purpose of placement in the select list, and his placement in the select list shall not be counted or adjusted against the vacancy earmarked for other vertical reservation category to which he belongs. Then मतलब नंबर 3, आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा यदि वह बिना किसी छूट के अनारक्षित अभ्यर्थी के समान अहर पाया जाता है, ऐसे अभ्यर्थी को आयु संबंधी छूट प्राप्त नहीं होगी. Now this is an exception to the what has been stated in sub rule 2. If a reserve category candidate happens to have enjoy any concession or relaxation, suppose age relaxation or age relaxation in terms of qualifying marks in the examination or otherwise, then he shall be considered in his own vertical reservation category, not in the unreserved category. 4, my lord. Now this is what I have said when I say in rule 1 that there has to be a consolidated gradation list based on merit in respect of each advertised post is further inferable from this sub rule 4. Yes. आरक्षण का लाभ देते हुए संयुक्त खुली सूची जारी करने के पश्चात अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के सफल अभ्यर्थियों की पृथक पृथक सूची जारी की जाएगी, जिसमें संबंधित आरक्षण श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों के नाम हॉरिजॉन्टल आरक्षण के अनुसार भी सम्मिलित किए जाएंगे. Then it provides, my lord, for framing of a consolidated merit list first, thereafter separate merit list in respect of which SC, ST and unreserved and OBC, and then it also provides that horizontal reservation be also included while preparing this separate list. For example, SC female, SC male, ex-servicemen, physically handicapped persons, all have to be considered and have to be included in that merit list, my lord. Yes. Then rule 5, sub rule 5 is again reiterated what has been reiterated in subclause 2, my lord. Subclause 2 pertains to vertical reservation. Subclause 5 pertains to subclause 5 of rule 11. उसी 11 का. 2 में जो proposition था कि merit shall not be compromised even on the basis of the vertical reservation category, this proposition has been reiterated in sub rule 5 of rule 11 with regard to the horizontal reservation category. भूतपूर्व सैनिक, महिला और शारीरिक रूप से निशक्त लोगों के लिए. Then my lord, rule 6, sub rule 6, समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवरिष्ठता लिखित परीक्षा में अंकों के आधार पर निर्धारित की जाएगी. लिखित परीक्षा में भी अंक ये मतलब दिस इज मटेरियल कि अगर समान अंक प्राप्त हुए हैं लिखित परीक्षा समान अंक प्राप्त किए हुए उम्मीदवारों को, तो उनका जो मेरिट है इट इज बेस्ड अपॉन द मेरिट ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन. जिसको लिखित परीक्षा में ज्यादा मार्क्स होंगे ही विल बी रैंक्ड सीनियर और मेरिटोरियस देन द अदर वन. लिखित परीक्षा में भी समान अंक होने पर आयु के आधार पर आपसी सहवरिष्ठता निर्धारित की जाएगी. यह आवश्यक नहीं है कि अंतिम कट ऑफ मार्क के पर समान अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को चयन सूची में लाया जाए. Lordship, is it? Yes, yes. Now what board has to do, my lord?
After framing this consolidated list, after framing separate list for each vertical reservation category by incorporating the names of the candidate from horizontal reservation category, what further board is required to do is spelled out in Rule 12. नियुक्ति के लिए मंडल की अनुशंसाएं, रूल 12। मंडल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नामों की नियम 11 के अनुसार मूल रिक्तियों के पदों के अनुसार संबंधित विभागों में नियुक्ति के लिए अनुशंसा करेगा। The right of the board is to forward recommendation to the concerned department for appointment is circumscribed by provision of sub-rule 1 of Rule 12, which says that board has to act in accordance with Rule 11 and the select list prepared in accordance with Rule 11 has to be forwarded to the concerned department for filling up the post. Yes. Now sub-rule 2, my lord. संबंधित विभाग से संबंधित अपेक्षित दस्तावेजों का परीक्षण करेगा। Yes. After sending the list by the board to the department will scrutinize the documents of the concerned candidate as per the eligibility और मंडल द्वारा भेजे गए अभ्यर्थियों के नामों की औपचारिकताएं पूरी करेगा तथा नियुक्ति आदेश जारी करेगा। नियमानुसार बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण अथवा सत्यापन नहीं किया जाता है। दिस इज मटेरियल my lord. Board does not enjoy any power or authority to scrutinize or to consider the documents filed by the candidates along with the application form. जी, नियमानुसार बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण अथवा सत्यापन नहीं किया जाता है। So, Lordship, my submission based on Rule 11 and Rule 12 would be twofold, my Lord. Number one, Rule 11 at no place provides for preparation of merit list for any post advertised by the respondent number 3 board on the basis of preference of a candidate. सेपरेट लिस्ट होगी वो कहाँ लिखा हुआ है? सॉरी लॉर्डशिप, कैटेगरी वाइज लिस्ट का कहाँ लिखा है? प्रेफरेंस वाइज नहीं होगी लिस्ट। दिस इज माय सबमिशन कि आप रूल 11 और रूल 12 को देखेंगे तो वहां पर कहीं भी ये नहीं लिखा है कि जो मेरिट लिस्ट है वो कैंडिडेट की प्रेफरेंस के हिसाब से बनाई जाएगी। रूल 11(1) में ये लिखा है कि जो लिस्ट बनेगी वो प्राप्त अंकों के आधार पर बनेगी, आवेदित पद के अनुसार। तो suppose, my lord, I put for an example, if I appeared in an examination conducted by respondent number 3 board, a joint examination for which as many as 10 departments has sent requisition, as has been done in the instant case, 144 departments have submitted the requisition. Based on requisition, the respondent number 3 board has issued this advertisement calling for the application. Now, as a candidate, and I'll show to your lordship chapter 3 also, which says that if a candidate is eligible for more than one post, then it is mandatory upon him to fill up to submit his preference for all the posts. He cannot leave any post without marking his preference. That chapter 3 may kindly be seen, my lord, at page number 97. I bookmarked it, my lord, for the convenience of lordship. So the ERP? The same rule. Chapter 1 I have shown to your lordship. Chapter 1 is the rules of 2013, that is statutory rules. They have incorporated it into the advertisement by making it terms and conditions of the advertisement.
पेज 90 पेज 97 चैप्टर 3 पेज नीचे लिखे फुट नोट में मलॉट राइट मोस्ट फुट नोट में यस 97 97 जी पेज नंबर 97 चैप्टर 3 क्लॉज 3.1 यस यस आप क्लॉज 3.1 का क्लॉज नंबर अगर 2 देखेंगे आप उसमें लिखा है आवेदक को विभिन्न पदों 3.5.1 3.1 का क्लॉज 2 रोमन 2 3.1.1 ना हाँ 3.1 का क्लॉज 2 रोमन 2 खंड अ 3.1 क्लॉज 2 आवेदक को विभिन्न पदों हेतु एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है देयर शेल ओनली ये 3.1 का क्लॉज 2 3.1 का हाँ 3.1 का रोमन 2 यस आवेदक को विभिन्न पदों हेतु एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है अब 3.3 देखें मतलब उसी के नीचे 3.1 का रोमन 3 उसी के नीचे वाला क्लॉज अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता उल्लेखित करते हुए एक से अधिक पद के लिए अपना विकल्प ऑब्लिक अधिमान पदवार चिन्हित कर सकेगा लॉर्डशिप इज इट यस ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं पदों के विकल्प ऑब्लिक प्राथमिकता क्रम के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्रवाई की जाएगी लॉर्डशिप इज इट आवेदन पत्र में उल्लेखित दी गई जानकारी एवं पदों के विकल्प ऑब्लिक प्राथमिकता क्रम के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्रवाई की जाएगी Now, let us read Roman 4 also along with Roman 3, which would make the intention of the authority clear. Roman 4. Yes. Now, Roman 4 says, समूह परीक्षा में विज्ञापित किए गए पदों के संबंध में आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक अर्हता एवं पात्रता के अनुसार उपलब्ध समस्त पदों हेतु दिस इज मटेरियल समस्त पदों हेतु विकल्प ऑब्लिक प्राथमिकता क्रम अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाना होगा मतलब एक अगर कैंडिडेट मोर देन वन पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो उसको सारी पोस्ट के लिए अपना प्रेफरेंस देना ही देना है आगे सभी पदों पर प्राथमिकताओं को दर्ज नहीं करने की स्थिति में अधिक अंक प्राप्त करने पर भी अभ्यर्थी को उन पदों के परिणाम पर विचार नहीं किया जाएगा जिनको अभ्यर्थी द्वारा प्राथमिकता क्रम में विकल्प के रूप में चयन नहीं किया गया है अब इसका कॉन्वर्स अगर मैंने सभी पदों के लिए प्राथमिकता नहीं दी है या ऐसे पद के लिए प्राथमिकता नहीं दी है और अगर मेरे अंक ज्यादा भी हैं तब भी मेरा नाम उस पोस्ट के अगेंस्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा दिस इज द प्रपोजिशन अब इसका कॉन्वर्स वुड ऑल्सो होल्ड गुड कि यदि अगर मैंने सभी पदों के लिए अपनी प्राथमिकता क्रम दी है तो मेरा कैंडिडेचर उन सारी पोस्ट के अगेंस्ट कंसिडर किया जाएगा अगर हम इसको रूल 11(1) के साथ पढ़ेंगे तो यही एक कंक्लूजन निकल कर आता है 11(1) आप मतलब चैप्टर 1 में आप रूल 11(1) देखें इस 10(4) के साथ में तो इसके मतलब आपके हिसाब से सारे मतलब हर कैटेगरी के मेरिट लिस्ट अलग अलग बनेंगे क्योंकि रूल की मैंडेट है और रूल आर स्टैट्यूटरी इन नेचर आप रूल 11 देखें रूल 11(1) 11(1) बताइए जी चैप्टर 1 में बोर्ड सफल अभ्यर्थियों द्वारा
एक मिनट, इट इज ऑन पेज पेज 8. यस प्लीज रीड। बोर्ड सफल अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर आवेदित पद अनुसार प्रावीण्य प्रतीक्षा सूची जारी करेगा। आवेदित पद के अनुसार मतलब जिस पोस्ट के लिए मैंने एप्लीकेशन दिया है उस पोस्ट के बोर्ड उसके लिए मेरे मेरिट के आधार पर या ऐसे सारे कैंडिडेट जिन्होंने पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उनकी मेरिट और वेटिंग लिस्ट जारी करेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये कहा कि अगर आपने सभी एप्लीकेशन फॉर्म पे टिक करवा लिए, सारी प्रेफरेंस पे टिक करवा लिया आपने, अब आपका रूल ये बोलता है कि आपको आवेदित पद के अनुसार प्रावीण्य सूची बनानी है। तो आवेदित पद और प्राथमिकता का क्रम दोनों चीजें अलग अलग है मेलॉर्ड। आवेदित पद मतलब जितने पोस्ट मैंने अप्लाई किए हैं आपको उनकी सबकी प्रावीण्य सूची बनानी है और इसीलिए 11(1) में ये लिखा है कि प्राप्त अंकों के आधार पर बनानी है आपको। मैंने प्राथमिकता दी है या नहीं दी है, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। आप रूल 11 में देखेंगे तो कहीं भी ये नहीं लिखा है कि मेरिट लिस्ट प्राथमिकता के क्रम के आधार पर बनाई जाएगी। काइंडली सी 11 रूल, एंटायर रूल 11, वो हर जगह प्राप्त अंक और मेरिट की बात कर रहा है। चाहे वो कंसोलिडेटेड मेरिट लिस्ट बनानी हो, चाहे वो वेटिंग लिस्ट बनानी हो, चाहे वो SC ST OBC की लिस्ट बनानी हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में लिस्ट बनानी हो, मेरिट कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। हाउ इट इज वर्केबल देन? मतलब इट इज फॉर द रूल मेकिंग अथॉरिटी, क्योंकि प्रैक्टिकल डिफिकल्टी से आप स्टेच्यूटरी मैंडेट को डिफीट नहीं कर सकते। बट इट शुड बी वर्केबल भाई, इफ द रूल इज देयर। जी, ये वर्केबल कैसा होगा जैसे आप बता रहे हैं? ये बिल्कुल वर्केबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि सारा डेटाबेस आपके पास में रहता है, कंप्यूटर ये सारी चीजें ऑनलाइन की जाती हैं। इनकी सिलेक्ट लिस्ट भी अगर आप देखेंगे वो पूरी कंप्यूटराइज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से निकलती है, सारा डेटा उनके पास फीड रहता है। जैसे ये प्राथमिकता क्रम कंप्यूटर एप्रिशिएट करता है वैसे की वैसे ही वो क्रम बिना किसी फर्दर एफर्ट्स के वो मेरिट लिस्ट ड्रॉ कर सकता है यूनिफॉर्मली इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स जिन्होंने भी उस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। ये सारा डेटाबेस इनके सिस्टम में इनके पास अवेलेबल रहता है। आई शो हाउ इट वर्क्स नाउ लॉट। इफ अब रूल 12 के अमेंडेड देखें कि रूल 11 के अनुसार बनी हुई सूची के अनुसार ही आपको रिकमेंडेशन भेजना है। रूल 12(1) मंडल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नामों की नियम 11 के अनुसार मूल रिक्तियों के पदों के अनुसार संबंधित विभागों में नियुक्ति के लिए अनुशंसा करेगा। मतलब रूल 11 में अगर आपने मेरिट लिस्ट बनाई है, सबसे पहले रूल 11 में आपको मेरिट लिस्ट बनानी है। मेरिट लिस्ट किस तरह से बनानी है वो रूल 11 में लिखा है, प्राप्त अंकों के आधार पर आवेदित पदों के अनुसार, और फिर आपको भेजना है डिपार्टमेंट को। क्योंकि यहां पर बोर्ड का काम सिर्फ और सिर्फ मेरिट लिस्ट बनाना है। क्या है? क्योंकि जो बोर्ड इस लेवल पर इस एग्जामिनेशन, इस मैग्नीट्यूड की एग्जामिनेशन अगर होल्ड कर रहा है तो उसका सिस्टम और उसका जो मॉडलिटीज हैं इट मस्ट बी कॉम्पिटेंट इनफ टू कैटर टू द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ और द स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ लॉ टू से द लीस्ट। क्योंकि अगर ये एडवर्टीजमेंट में लिखा है कि मेरिट प्राप्त अंकों के आधार पर बनाई जाएगी और आपको सारी पोस्ट के लिए अपना प्रेफरेंस देना है, तो नेचुरली सारी कैंडिडेट अपना प्रेफरेंस देंगे एट रैंडम। What they have done, my lord, they have considered the option or the preference submitted by the candidate
एज ए फैक्ट कि और किसी पोस्ट के लिए इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, और उन्होंने रिजल्ट भी उसी पोस्ट का डिक्लेयर किया. काइंडली सी द रिजल्ट in case of the petitioner, which is contrary to the not only to the rule, the terms and condition of the advertisement, but it kept the meritorious persons in dark. आप P8 देखें, पेज पिटीशन में पेज नंबर 38 पे ये रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर किया है. P8 पेज नंबर 38. यस, ये रिजल्ट इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट का डिक्लेयर किया है, जिसको मैंने प्राथमिकता में नंबर 1 दिया था एट रैंडम. अब ये है कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट. इसमें इसके अगेंस्ट में इन्होंने मेरिट पोजीशन 1 लिखा है मेरा, और सिर्फ इतना सा रिजल्ट डिक्लेयर किया है इन्होंने. और ये अप्लाइड प्रेफरेंस में आपने क्या क्या लिखा है? ये आप देखेंगे सारी पोस्ट हैं. आप मेरा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म देखिए P7 का. यस, पेज नंबर 25 पर आप देखें मतलब. पेज नंबर 25 पर मेरी सीरियल नंबर 144 पहली प्रेफरेंस थी. हाँ, तो इन्होंने सिर्फ 144 पेज नंबर का रिजल्ट डिक्लेयर किया, पोस्ट नंबर 144 का. तो वेर इज द कंप्लायंस ऑफ सब रूल 11, सब रूल 1 ऑफ रूल 11? मेरे आवेदित पद, तो ये इतने सारे आवेदित पद हैं मेरे. अब इसमें मैंने आई हैव आल्सो अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ग्रेड 3 इन वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, विच इज सीरियल नंबर 36, ऑर्डर ऑफ माई प्रेफरेंस सीरियल नंबर 36. ऐसा भी हो सकता है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आपको दिया गया है, व्हेन यू हैव सिलेक्टेड इन द फर्स्ट प्रेफरेंस देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू फॉर 2 and 3 अदर. नहीं, अगर ऐसा भी लिखा, ऐसा में नहीं होता तब फिर दूसरे का बनाते हैं. नहीं मतलब अगर ऐसा भी होता तब भी चल जाता, अगर लिखा होता ऐसा. माय माइंड, बट ये व्हाट आई थिंक इज, ये प्रेफरेंस इसलिए दिया गया है कि इफ बाय फर्स्ट प्रेफरेंस आपको नहीं मिला तो देन द सेकंड प्रेफरेंस विल गो. नहीं अब लेकिन अगर देयर इज नो पर्पस ऑफ मेकिंग यू ऑप्ट फॉर सो मेनी. नहीं उसका भी लॉजिक मैं बताता हूँ. प्रेफरेंस का क्या लॉजिक है, या प्रेफरेंस का लॉ क्या है? प्रेफरेंस का लॉ ये इसलिए माना गया है माय लॉर्ड, सपोज मान लीजिए अगर मैंने पोस्ट नंबर 1 ऑप्ट किया है, हाँ, और किसी दूसरे व्यक्ति ने भी पोस्ट नंबर 1 ऑप्ट किया है, वहां पर प्रेफरेंस, हम दोनों की प्रेफरेंस पोस्ट नंबर 1 है. अब किस व्यक्ति को अलॉट होगा वो इट विल डिपेंड अपॉन मेरिट. लॉ ऑफ प्रेफरेंस, आई हैव सबमिटेड जजमेंट आल्सो टू दैट इफेक्ट कि प्रेफरेंस विल ऑपरेट वेयर द मेरिट्स आर इक्वल. जैसे उन्होंने आपने रूल में भी कहा है कि जहां लिखित परीक्षा में नंबर बराबर होंगे तो एज देखेंगे, या सबसे पहले लिखित परीक्षा के अंक देखेंगे, फिर उसके बाद में अंक बराबर है तो एज देखेंगे. एज देखने के बाद में भी जरूरी नहीं है कि कट ऑफ में जितने नंबर के लोग हैं उन सबका हो जाएगा. फिर वहां पर प्रेफरेंस का क्वेश्चन आएगा कि जिस पोस्ट के लिए व्यक्ति ने प्रेफरेंस दी है उसका प्रेफरेंशियल क्लेम होगा. लेकिन देयर कैन नॉट बी एन ब्लॉक प्रेफरेंस ओवरलुकिंग द मेरिट. You have to respect to the merit. Preference would come as a secondary mode, my lord, of allotment of seat या for allocation of post. अब इसकी anomalous results इस केस में बहुत ही apparently दिख रहे हैं my lord, कि एक कैंडिडेट वो है scored marks more than all the candidates who have been selected for the post of assistant grade 3 in water resources department. आप P9 की select list देखेंगे, सारे कैंडिडेट के मार्क्स इससे कम है. बट दीज कैंडिडेट्स, दो inferior in merit, are being given the appointment on the regular post of assistant grade 3, and the petitioner who has scored more marks than these candidates, he has been given only a contractual appointment.
भाई it is because you have opted the first as the your मतलब preference. वो एट रैंडम चॉइस है, प्राथमिकता का क्रम एट रैंडम है। और आप अगर रूल देखेंगे तो मुझे सारे पोस्ट अप्लाई करनी है, नहीं ऐसा बट नहीं है कि मैं किसी पोस्ट को छोड़ आप सकता था। ऐसे में कितनी मेरिट लिस्ट बनाएंगे और किस किस को कहाँ प्लेस करेंगे भाई? योर फर्स्ट प्रेफरेंस इज इन द फर्स्ट डिपार्टमेंट. तो वहां मतलब इट हैज टू बी मेरिट इफ यू देन क्वालिफाई, देन then what is the देन purpose of having the including you in the second list जब आपको प्रेफरेंस पहला हो देन गया तब? देन व्हाट हाँ, वुड बी अगर आप दी। फर्स्ट कैटेगरी में मेरे हिसाब से जो मेरे को लग रहा है कि अगर ये फर्स्ट ऑप्शन में क्वालिफाई नहीं होते तो देन आपको जो है ये जो आप जो बोल रहे हो वाटर रोड्स डिपार्टमेंट में इसमें आपको इन ऑर्डर ऑफ मेरिट में प्लेस करते हैं. मतलब बट पर वंस योर ऑप्शन हैज बीन फुलफिल्ड, ये अगर एडवर्टीजमेंट में ऐसा लिखा होता कि हम जो मेरिट लिस्ट बनाएंगे, हम मेरिट लिस्ट बनाएंगे प्राथमिकता के क्रम के आधार पर, तो मैं सिर्फ वही के पोस्ट के लिए अप्लाई करता। नाउ नहीं नाउ बट नाउ दिस पोजीशन कैन नॉट बी चेंज्ड। let us see, but I don't think इसमें क्या है, in so many words the advertisement is not spelled out clearly, but what we can infer from the clauses of the agreement is that the very purpose and the import of the Lordship, kindly appreciate, chapter 1 is the statutory rules. Besides terms and condition of service, chapter 1 is statutory rules. where they are differing from the rules में तो है They ना, are but they are different, yes, negated because categorized. मतलब But they अगर are आपको इंक्लूड सब में करेंगे तो फिर ऐसे में कहाँ कैसे करोगे आप हर जगह? देन अगर मान लो आप, तो आपकी एनालॉजी मानते हैं, जी आप फर्स्ट ऑप्शन में आपके मेरिट में आ गए, आप जी हाँ सपोज करो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में भी आपकी प्लेसमेंट नंबर 1 पे है, जी हाँ, फिर तो मुझे मेरिट के बेसिस पर इट वुड बी माय चॉइस कि मुझे कौन सी पोस्ट लेना है। इट इज नॉट द प्रोरोगेटिव ऑफ द ईएसबी, क्योंकि इनका काम नहीं, it is because you have been given a chance at the first stage itself to मतलब आई पुट आपने एक अनदर बार opt एग्जांपल, कर लिया, अगर आप वहां नहीं मिलता then you have a right for going into the second option. मतलब आई पुट अनदर एग्जांपल मलॉट नहीं तो इन फिर ये यूपी। नहीं तो देयर वाज नो पर्पस ऑफ गिविंग यू सो मेनी ऑप्शंस. आपको तो ये बोलते कि आप सारे सब्जेक्ट में भर लो, सबसे ज्यादा मार्क्स जहां पर आएंगे दिस इज द कट ऑफ मार्क फॉर दिस डिपार्टमेंट. ऐसा थोड़ी होगा, वो तो नहीं उन्होंने वो सबके ऐसा लिए. मलॉट, अगर ये क्लैरिटी इज, इफ दिस क्लैरिटी इज देयर इन द एडवर्टीजमेंट आई कुड अंडरस्टैंड ना। ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, ये दिस इज नॉट द पर्सनल हार्डशिप ऑफ द पिटिशनर। ही इज सीकिंग फ्रॉम दिस ऑनरेबल कोर्ट what has been projected to him in the shape of recruitment rules, what has been submitted before him in the shape of this advertisement. Now can, after holding the examination, the authority, be it state government or the employee selection board, can deviate from what has been projected to the present petitioner. But the answer lies in this judgment of 2025 by the 5 judges bench of the Honorable Supreme Court. क्या है वो? Very explicit judgment, and it is uploaded in ERP Tej Prakash 2025 volume 2 SCC page number 1, and I straightway draw lordship attention to the conclusion, paragraph 65, directly covering the issue, paragraph 65. Yes. ना मतलब आप 65.1 में देखेंगे तो पहला है रिक्रूटमेंट प्रोसेस कमेंसेस फ्रॉम द इश्यूएंस ऑफ एडवर्टीजमेंट, कॉलिंग फॉर एप्लीकेशंस एंड एंड्स विथ फिलिंग अप ऑफ वैकेंसी। मतलब आप सिलेक्शन प्रोसेस, ये दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज डिफाइंड व्हाट वुड बी द सिलेक्शन प्रोसेस, व्हाट वुड बी द ड्यूरेशन ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। अर्लियर देयर वर डाइवर्जेंट व्यूज कि सिलेक्शन, जब सिलेक्ट लिस्ट बन गई उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। एडवर्टीजमेंट से शुरू हुआ, जब तक वैकेंसी फिल नहीं होगी तब तक सिलेक्शन प्रोसेस कंटिन्यू मानी जाएगी। सेकंड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीइंग प्लेस्ड इन द सिलेक्ट लिस्ट, दिस इज मटेरियल माय लॉर्ड, दिस इज व्हाट हैज बीन वायलेटेड इन द इंस्टेंट केस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीइंग प्लेस्ड इन द सिलेक्ट लिस्ट, Yes, notified at the commencement of the recruitment process, जो आपने एडवर्टीजमेंट के समय प्रॉमिस किया है या जो भी नोटिफाई किया है, कैन नॉट बी चेंज मिडवे थ्रू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस अनलेस द एक्स रूल्स सो परमिट।
this rules in my case is in my favor, so permit, or the advertisement which is not contrary to the extent rule, so permit. Material thing, my lord. The advertisement has to be in accordance with the rules. There cannot be an advertisement offending the statutory provision of law. Further, even if such change is permissible under the extent rules or the advertisement, the change would have to meet the requirement of Article 14 of the Constitution and satisfy the test of non-arbitrariness. Here is a case where the rule does not permit. Here is a case advertisement does not permit. And still, while preparing the select list, the respondent number 3 resorted a mechanism based on the preference of the candidate. Rule says it should be based on the total marks obtained by the candidate as per the advertised post. नहीं तो रूल 11 में ये लिखा होना चाहिए था कि मंडल जो है अभ्यर्थियों के नाम की सूची प्राप्त अंकों के आधार पर उसके द्वारा दिए गए प्राथमिकता के क्रम के आधार पर जारी करेगा। तो बात समझ में आ जाती, जब क्लैरिटी भी रहती है और कैंडिडेट सिर्फ उन्हीं पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर में वो जाना चाहता है। एट रैंडम सारी 144 पोस्ट एट वन गो नहीं करता। और दूसरा, इन्होंने ही इसको मैंडेटरी किया कि आपको सारी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। आप चैप्टर 3 का इसको फर्दर मैं देखता हूं, मतलब 60.534 देखें मतलब, रिक्रूटमेंट बॉडीज subject to the extent rules. That's it, is it? Yes, 65.4. 60.54 recruitment bodies, यहाँ पर respondent number 3 board है my lord, subject to the extent rules. Again, primacy of rules has been given an upper hand my lord. May devise appropriate procedure for bringing the recruitment process to its logical end, provided the procedure so adopted is transparent, non-discriminatory, non-arbitrary, and has a rational nexus to the object sought to be achieved. So anything, your lordship is quite right, practical aspect, workability, but if we go by this 60.4, it says you can do whatever you feel like doing, but subject to extent rules. You cannot bypass statutory rules on any premise whatsoever regarding, be it practical difficulty, be it workability, or on any count whatsoever. Yes. Then 65.5, extent rules having statutory force are binding on the recruitment body. The state or its instrumentality for bona fide reasons may choose not to fill up the vacancies. However, if vacancy exists, the state or its instrumentality cannot arbitrarily deny appointment to a person within the zone of consideration in the select list. Well, this is again a trade setting judgment as far as right of the selected candidate is concerned. Yes. Earlier, your lordship may be aware that this mere selection does not confer any right was the rule. But now it is subject to an embargo that if the vacancy are there, you cannot deny appointment arbitrarily to a selected candidate. So, my lord, if lordship consider this 5 judges bench of judgment of the Honorable Supreme Court, laying down the proposition of law, circumscribing the discretion or the choice of the recruitment body, giving primacy to the statutory rules, my lord. So then in such circumstances, any consideration on any count whatsoever, be it on practical difficulty front, on workability front, or on the basis of the so-called choice or the option, it cannot be bypassed on any count whatsoever.
and lordship would also be pleased to appreciate a proposition of law. Can there be an estoppel against the law? Suppose I Yes. tendered my preference for n number of posts. Then whether it was incumbent upon the board to appoint me on such post regardless of merit, the answer would be an emphatic no. So the statutory rules which bind the candidate, they bind the recruitment body and the employer as well, my lord. Yes. So no deviation from the statutory framework as provided under chapter 1. Now, my lord, interestingly, now why this case stands on a better footing, I put it from different perspective. Now this 2013 are statutory rules. Now they have been embodied and incorporated under chapter 1 in the rule book or in the advertisement itself. So here is a case where the statutory rules are saying that the merit list should be prepared on the basis of marks obtained. The terms and condition of advertisement says that it should be based on merit of the candidate concerned. Now chapter 3 over which reliance is being placed, whether it comes to the rescue of the respondent number 3 or not, rather it comes to the rescue of the present petitioner, my lord. The chapter 3 clause 3 and 4, respondent says that they have acted in accordance with these two clauses 3 and 4 and prepared the list based upon the choice of preference or the preference which the petitioner has shown. Now, my lord, paragraph I say kindly see 3 and 4 once again. Don't repeat, उसको बता चुके आप. नहीं, उसको ये बताना चाह रहा हूं मैं कि आवेदन अगर आप देखेंगे उसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं पदों के विकल्प के आधार पर ही परीक्षा व परीक्षा परिणाम संबंधी कार्यवाही की जाएगी. इसका मतलब इन्होंने ये निकाला कि अगर मैंने प्राथमिकता क्रम दी है तो उसी क्रम में परीक्षा परिणाम की कार्यवाही की जाएगी. ऐसा नहीं है, क्योंकि उसको क्लेरिफाई किया है क्लॉज 4 में. ये मैं बताना चाह रहा हूं मिलॉर्ड. इन्होंने ये कहा है रिप्लाई में कि इस क्लॉज में ऐसा लिखा है कि पदों के विकल्प और प्राथमिकता के आधार पर ही परीक्षा व परीक्षा परिणाम संबंधी कार्यवाही की जाएगी. तो कार्यवाही करने का मतलब है कि सिलेक्ट लिस्ट बनाना इनके हिसाब से, और इन्होंने इसी के हिसाब से काम किया है. और अगर ये इसके हिसाब से काम किया है तो ये क्लॉज 4 को कहां लेके जाएंगे, जो ये बोलता है कि आपको पहली बात तो कैंडिडेट को सारी पोस्ट के लिए अप्लाई करने को बोल दिया उसने, और उसमें लिखा है कि सभी पदों पर सभी पदों पर प्राथमिकताओं को दर्ज नहीं करने की स्थिति में अधिक अंक प्राप्त करने पर भी अभ्यर्थी को उन पदों के परिणाम में विचार नहीं किया जाएगा. आई एम पॉजिंग हियर फॉर ए मोमेंट. अगर मैंने ज्यादा अंक प्राप्त किए और पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है तो मेरा रिजल्ट कंसीडर नहीं होगा. और क्रॉस 11(3) की भी स्पिरिट वही है कि प्राथमिकता के क्रम और विकल्प के आधार पर ही परीक्षा परिणाम की कार्यवाही की जाएगी. मतलब अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आपका परीक्षा परिणाम उस पोस्ट के लिए डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, भले ही आपने उससे ज्यादा अंक प्राप्त कर लिए हो, आपने कट ऑफ से भी ज्यादा प्राप्त कर लिए हो, लेकिन अगर आपने उसको अपने प्राथमिकता क्रम में शामिल नहीं किया है तो आपका उस पोस्ट के लिए रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा. इसका मतलब ये होता है. You are reading from the rule book, ना? हाँ, ये रूल बुक इनका चैप्टर 3 है मेलॉडी है, क्योंकि इनका पूरा केस इन दोनों क्लॉज के ऊपर ही है. इनके पूरे रिप्लाई में इन्होंने यही कहा है कि, और इन्होंने लगाया भी सिर्फ इतना चैप्टर 3 है, इन्होंने चैप्टर 1 तो लगाया नहीं था आपके सामने. इनका कहना है कि चैप्टर 3 और 4. Yes, let us hear the other side also because we don't have. just 1 minute मतलब अब इसी बताइए, जल्दी बताइए. यस, अभ्यर्थियों को परिणाम पर विचार नहीं किया जाएगा जिनको अभ्यर्थी द्वारा प्राथमिकता के क्रम के विकल्प के रूप में चयन नहीं किया गया है. तो 11(3) का आंसर ही 11(4) में दिया है.
इसका मतलब ये नहीं होगा 11-3 को हम आधा अधूरा नहीं पढ़ेंगे, 11-3 को 11-4 के साथ पढ़ना पड़ेगा, और 11-3 और 4 जो कि एक उसी एडवर्टीजमेंट का हिस्सा है, उसको हमको चैप्टर 1 के प्रोविजन के साथ में भी पढ़ना पड़ेगा जो कि स्टैट्यूटरी कैरेक्टर के हैं। यस। और लॉ ऑफ प्रेफरेंस के लिए मतलब 3 जजमेंट मैंने अपलोड किए हैं, इंक्लूडिंग वन ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट बाय द कोऑर्डिनेट सिंगल बेंच। दैट इज वन। उसके मैंने हाँ, ये अर्चना वाला जजमेंट मैंने 2 प्रपोजिशन के लिए रिलाय कर रहा हूं मिलॉट। फर्स्ट वाला जजमेंट अर्चना का पहला, उसमें भी ये पोजीशन हुआ था कि एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन कैन नॉट ओवरराइड द प्रोविजन ऑफ रूल्स। तो चैप्टर 3 का जो प्रोविजन है, अगर इफ इट इज इनकंसिस्टेंट विद चैप्टर 1 प्रोविजन जो कि स्टैट्यूटरी है, तो टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी चैप्टर 1 के रूल प्रिवेल करेंगे, प्रोविजन प्रिवेल करेंगे। और इसी में अर्चना वाले में ही प्रेफरेंस का लॉ भी है कि अगर मेरिट इक्वल है तो ही प्रेफरेंस आपको देखनी है। देख लेंगे। लेट अस हियर द अदर। यस यस my lord, this is all my lord. Sum and substance of the case of the petitioner is this, by which they have approached this honorable court, is this that he was placed on merits at a higher standing, and someone who has been placed lower than him in the merit has been given appointment in a department of which he has also preferred. given this option. And has submitted his option. Now, the judgment that my learned friend has referred to your option. नहीं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में फिर आपने ये ऑप्शन क्यों दिया कि वन शुड ऑप्ट फॉर एवरी? So, उसका पर्पस ये है कि if someone, let's say in the case of the present petitioner only, नहीं, अगर मान लो सब एडवर्टाइजमेंट में इट इज अनदर केस वेदर ही हैज ऑप्टेड और अदर्स हैव ऑप्टेड और नॉट, बट यू हैव मेड इट ओपन दैट एवरीबॉडी इज रिक्वायर्ड टू ऑप्ट इट। जिसको ऑप्ट करना है ऑप्ट करे। मान लो 20 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, 20 में से किसी ने 10 में ऑप्ट किया। वेरी पर्पस ऑफ ऑप्टिंग इज कि भाई मेरिट लिस्ट तो कॉमन है, आपने एक बनाई, फिर उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से कैटेगरी वाइज आप मेरिट बनाओगे ना हर एक डिपार्टमेंट का। नहीं तो फिर उसका ऑप्शन का मतलब क्या होगा? the list is constructed on the basis of merit cum preference. मेरिट कम। Merit cum preference. हाँ That is the basis of preparing the list, Your Honor. हाँ For that, we have placed on record a standing circular also. That is filed along with a reply, which clarifies the situation, Your Honor. The circular came in the 2017, and it is applicable throughout, Your Honor. अच्छा, क्या है वो? What is it? You can kindly see that for a moment. This Your Honor would find along with the document 4282 from the section. Yes. 4282. Page number 2. Yes. R1. Yes, sir. Please पढ़े। This is Mahmood Sutra. R2. Yes. Yes, sir. Yes. हाँ। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों और विभागों में रिक्त विभिन्न प्रकार के पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षाओं का आयोजन समूह परीक्षा के रूप में किया जाता है। इन परीक्षाओं में पदवार निर्धारित शैक्षणिक व अन्य अर्थों के आधार पर आवेदकों द्वारा विभिन्न पदों के प्राथमिकता क्रम दिए जाते हैं। इन परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम में प्राप्त अंकों के आधार पर आवेदक द्वारा दी गई प्राथमिकता क्रम में जो पद आवंटित होता है, उसके पहले ही प्राथमिकता क्रम वाले पदों की प्रतीक्षा सूची में उसे स्थान प्राप्त होता है। परंतु जिस प्राथमिकता क्रम का पद आवंटित हो जाता है, उसके बाद की शेष प्राथमिकता क्रम के पदों की प्रावीण्य ऑब्लिक प्रतीक्षा सूची में उसे स्थान प्राप्त नहीं होता है। उदाहरणतः किसी आवेदक द्वारा निम्न अनुसार पदों के प्राथमिकता क्रम ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिया जाता है, तब then they say your option, a chart is there, your option would see a table is there, here a table which says that अगर आपने प्राथमिकता क्रम 01 में पद कोड 151 लिखा है, जैसे कि प्रेजेंट केस में आपने प्राथमिकता क्रम में 144 लिखा था, then so on and so forth। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ये बताया कि जैसे आपने प्राथमिकता क्रम 4 में अगर पद कोड नंबर 116 लिखा है, then the clarification that they take to this is this, परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उपरोक्त पद
प्राथमिकता क्रम में से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्राथमिकता क्रम के पदों की प्रतीक्षा सूची में स्थान प्राप्त होता है तथा उसे चौथी प्राथमिकता क्रम के पद कोड 116 की प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में क्योंकि आवेदक को चौथी प्राथमिकता क्रम के पद की प्रावीण्य सूची में ही स्थान प्राप्त हुआ है तथा इसके बाद के श्रेष्ठ प्राथमिकता क्रम वाले पदों की प्रावीण्य और प्रतीक्षा सूची में उसे स्थान प्राप्त नहीं होगा। तो whether this ये जो आपने लिखा है, it is part of the rules or the advertisement? मगर इस पे एनेक्चर R2 पे डेट नहीं है, मैंने रिजॉइंडर में स्पेसिफिक लिखा है इसके बारे में। Date नहीं है वो अलग बात है, but Sir, even if there is a date. This is a standing circular of 2017, squarely applicable through all the Examinations. common entrance examinations. And since, as per the case of the petitioner, there was an anomaly. Therefore, in order to clarify that situation, this has this But where clarification. is that circular? Where is that circular जिसको आप rely कर रहे हैं 2017 का? So this was the circular. This is the part. This is the only circular that has come in. इसमें तो ये saying कोई date नहीं है. But कोई डेट नहीं है it इसमें। नहीं है. this has been passed in the year 2017 itself. Very well available on the website of the respondent itself. और वहीं से if you lordship would permit, I'll supply the link also to this. Yes. Now, our case is solely based upon this, your lordship, that आप अगर इस सर्कुलर के बेसिस पर मैं देखूं तो आपने जो रेफरेंस मार्क किया था 01 नंबर पे, that was 144. As per your merit, you are allotted 144, your lordship. Now my learned friend is coming up and saying कि हमने तो जो प्रेफरेंस मार्क किया था वो randomly मार्क कर दिया था, which was never the intention of the rules also. The rules specifically says that these preferences were supposed to be marked mandatorily, your lordship. Now once the rule says that the preferences were to be marked mandatorily, your lordship, marking the preferences randomly, which is the case of the petitioner, your lordship. That means that the authority is obliged to draw his merit as per his preference. As per the preference, your lordship. आप जो केस लेकर आए वो ये आए कि मुझसे कम मार्क्स वाले आदमी को आपने वो पोस्ट दे दी जो मैंने भी ऑप्ट किया था. You had opted it at serial number 36 in your preference list. आपने as per your merit आपको 144 मार्क किया था on serial number 1, which has been given to you. Now अगर if the case of the petitioner is to be taken as it is also, this would result in a situation whereby the persons who have marked preferences, जिसने serial number 1 में अपनी preferences mark करी हैं, तो there might be a situation where multiple persons would have marked for same preferences in serial number 1 also. अब क्या उन सब लोगों को वो पोस्ट दे दी जाएगी? नो. मेरिट सर मैं आपकी बात सुन रहा था, प्लीज लेट मी. So the situation would then be resolved by way of merit, your lordship, कि जिसकी मेरिट आई है उसको पोस्ट अलॉट करी जाएगी. नाउ जिस बेसिस पे पिटीशनर अपना केस लेकर आया है अगर उसको टू बी टेकन एज इट इज, उनके फेस वैल्यू भी देखें तो अगर आप मान लीजिए आपके रैंक 1 आई है तो क्या आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने प्रेफरेंस में जो भरे हैं उसमें से आपको किसको ऑप्ट करना है, और आप जिसको ऑप्ट करोगे वो ही आपको अवार्ड की जाएगी. बाकी के लोगों के जो और जो कैंडिडेट्स हैं, टोटल अराउंड एज पर माय इंस्ट्रक्शन 996 पोस्ट हैव बीन एडवर्टाइज्ड, तो बाकी के जो 995 लोग हैं वो आप जब ऑप्ट कर लोगे उसके बाद में उनको मैंने बोला हाउ इट इज किया जाएगा. वर्केबल, कोई मैं पूछ रहा था हाउ इट इज पॉसिबल एंड वर्केबल इन दोस सिचुएशन. But merely because you have now marked something and now you don't want that. So you are coming up with a case कि हमने तो randomly mark कर लिया था साहब उसको. And since we have randomly marked it, therefore that is true. But we have to go with the rules. I go down to that. Rules में तो जैसा दिया we have to read as it is. But how you will meet out ये जो महत्वपूर्ण सूचना है, whether it is in consonance with the rules. This is just a clarification, Your Lordship. It is nowhere transgressing the rules at all. But ये वही तो मैं बोल रहा हूँ कि whether in all the advertisements and all the selections you apply the same. Yes. This is not. जहाँ joint options होते हैं. This is not the first exam that has been conducted. Common entrance examination, Your Lordship.
And this circular ये- has ये- been ये spending चीज- all this while. नहीं, but why don't you publish this clarification along with the advertisement so that the candidates are very clear about their choice? That exercise would be undertaken now, Your Lordship. But this was very much available on the website of the respondent, and this has Because been. once the way candidates are only required to go into the clauses of the agreement, clauses of the advertisement, plus the rules which are governing the post. Any other clarification which is not there in black and white before them, how can they know that what is the I put on to that, Your Lordship. I put on to that, but this That is- anomalous that is why- situation that the भाई petitioner जो wants आपने to अभी highlight. प्रस्तुत किया है वो तो वैसे भी रूल्स पढ़ने पे लग रहा है एडवर्टाइजमेंट में। अगर सबको ऑप्ट कर देंगे तो फिर कितनी मेरिट लिस्ट बनाओगे और कैसे आप प्लेस करोगे हर को? इट इज नॉट वर्केबल। सो ये अगर क्लैरिफिकेशन इसमें होता, ये 2 लाइन का टेबल आप बना देते तो इसमें कोई आता ही नहीं ये सब। दैट इज द मेन। I will now instruct the authorities to act upon this, Your Lordship. But Because it is not the there in the intention of the authorities is to be seen also, Your Lordship. This existence of this circular, along with the rule that my learned friend just now referred to, 313, Your Lordship. That also makes it clear, Your Lordship. Reading this rule along with the circular makes it absolutely clear that once you have opted for a particular post as your preference, and you have been allotted that, then you cannot ask for some other preferences. नहीं तो ये अनएंडिंग होगा ना भाई। आपने मान लो 30 पोस्ट 30 डिपार्टमेंट अप्लाई किए हैं, अब आप अपने मेरिट के हिसाब से बोलोगे कि हमको जो है हर एक कैटेगरी में हम बताएंगे, पहले हम ऑप्ट कर ले, उसके बाद जो है बाकी की मेरिट लिस्ट ऑप्ट करेंगे। This So would you- arise. This will, would be. This would yes. be a I'll a satisfy. chaotic situation. Let him complete, मतलब I'll satisfy lordship regarding this. हाँ, बताइए ना भाई, जल्दी बताओ, टाइम भी मैं इस पर बता, ये इनका हो गया क्या मतलब? The judgment that my learned friend is referring to. Yes, yes. And the judgment that my learned friend is referring to of Tej Prakash Pathak, Your Lordship, it talks about the fact as to the eligibility criteria cannot be changed midway, Your Lordship. This is not the case of the eligibility criteria being changed. It also speaks about the rules also. It talks about the rules, Your Lordship. This, only submission is this, Your Lordship, that this clarification is no way transgressing the rules at all, Your Lordship. It is rather just clarifying as to whatever has been mentioned in the rules, Your Lordship. Yes. It is no way changing as to what actually the rule says, Your Lordship. And it being a situation where this clarification would have resulted in a situation where it would be actually changing the intention as to what the rule exactly says, then I would be hit by this judgment, Your Lordship. But this is just a situation where they clarify the situation that as to by just giving an example that if such a situation would arise, this would be how it would be interpreted, Your Lordship. Yes. और बाकी के जो जजमेंट्स हैं जो आपने अपने पिटीशन में भी रेफर किया, इसमें लर्नेड फ्रेंड was just now referring to, as per my humble submission, they have no relevance in the present case because they talk about the fact that if someone has been given preferential treatment based upon their based upon non-merit, Your Lordship. So that is not the case in the present case. Your merit has very well been considered, and even after considering your merit only, you have been given your first preference, Your Lordship. Yes. A small rebuttal, my lord. Paragraph 4 of my rejoinder, I have specifically pleaded what my lord what my lord has stated just now, my lord. That kindly see paragraph 4 of my rejoinder, I have specifically pleaded that as far as this notice which is annexure R2 is concerned, it does not contain any date. If the stand of the respondent number 3 board is accepted that this notice is reflected on their website since 2017, then the reference of the same should have been mentioned in the advertisement / rule book itself. However, in absence of any such reference to this notice in the advertisement / rule book, the respondent number 3 board is bound by the terms and conditions of the advertisement and cannot go beyond it. Even otherwise, this notice annexure R2 runs contrary to the explicit terms and conditions of the advertisement, as also a statutory provision of law contained in Madhya Pradesh Junior Service Joint Qualifying Examination Rule 2013, which forms part and parcel of the advertisement / rule book itself in chapter 1. Malab, there is no denial to this pleading as such before your lordship that it does not contain any date. My learned friend, if the contention is accepted कि ये 2017 से ही था, तो what precluded them from bringing it to becoming a part of the advertisement? और मतलब दूसरा आपका जो ये consideration है
कि अगर कितनी सारी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी तो दे देमसेल्व्स आर ब्लेम फॉर दिस एनोमली, क्योंकि चैप्टर 3 में इनको ये नहीं लिखना चाहिए था फिर कि सभी पोस्ट के लिए कैंडिडेट को अप्लाई करना पड़ेगा। वो उसकी मेरिट के हिसाब से, वो जिसको अगर उसको लगता तो उसको वो अपनी मेरिट अपनी चॉइस के हिसाब से सिर्फ उन्हीं पोस्ट पे अप्लाई करता जिसके उसको अपॉइंटमेंट होना पड़ता, तो उसको अपॉइंटमेंट लेना था। आपने चैप्टर 3 में पहले तो मैंडेट कर दिया उसको कि आपको सभी पोस्ट के लिए प्राथमिकता का क्रम अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा। तो अब जब उसने सारी प्राथमिकताओं के क्रम को अगर दर्ज कर दिया है तो मतलब उसने वो सारी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। आप ही आपकी तरफ से अप्लाई करवा रहे हो सारी पोस्ट के लिए, और फिर आप कहते हो कि भाई मैं एक्स पोस्ट के लिए रिजल्ट डिक्लेयर करूंगा, वाई पोस्ट के लिए इसलिए रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करूंगा क्योंकि वो आपने नीचे ऑप्ट की थी। तो अब मुझे किसी ना किसी को तो नंबर 1 देना पड़ेगा। अगर मुझे ये पता होता कि ये प्राथमिकता के क्रम के आधार पर ही मेरा रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो मैं मेरी प्राथमिकता का क्रम उस हिसाब से तय करता। लेकिन जब मुझे पता ही नहीं है कि मेरी प्राथमिकता के क्रम का आप करोगे क्या? ऑप्शन इज ऑलवेज देयर कि जो बेस्ट आपको चाहिए है। ऑप्ट मतलब क्या होता है? अगर आप किसी एडमिशन किसी कॉलेजेस में लेते हो तो ऑप्शन का व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्शन? The plain meaning of option is the preference which you prefer to opt for the best college or best department. मतलब मैं इस चीज को भी एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने इस प्रेफरेंस को पहले मान ला। अब मेरी प्रेफरेंस के आधार पर क्या मेरिट लिस्ट बनेगी ये तो रूल में लिखा होना चाहिए ना। मैं कुछ भी मांग सकता हूं। एक चीज आप समझे कि मैंने कुछ भी चीज मांग लिया, मैंने कोई भी ऑप्शन मांग लिया, क्या मैं स्टॉपल प्लीड कर सकता हूं या रिस्पोंडेंट नंबर 3 बोर्ड स्टॉपल प्लीड कर सकता है क्या अगेंस्ट द रूल? अब वो देखना मान लो मेरे कंडक्ट के आधार पर स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ लॉ से डिविएशन हो सकता है क्या? प्रैक्टिकल डिफिकल्टी के आधार पर स्टैट्यूटरी रूल को आप दरकिनार कर सकते हैं क्या? तो मतलब देयर कैन नॉट बी स्टॉपल अगेंस्ट द लॉ। मेरे कंडक्ट के आधार पर भी आप रूल से डिविएट नहीं कर सकते। आप एक रिक्रूटमेंट बॉडी हैं, आप रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं, आपका काम है मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करके डिपार्टमेंट को, कंसर्निंग डिपार्टमेंट को भेजना, और आप बाउंड बाय द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट है। ये 309 में बनाए हुए रूल हैं, 2013 के स्टेट गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं ये एग्जामिनेशन के। तो रिस्पोंडेंट नंबर 3 बोर्ड कैन नॉट गो बियॉन्ड दोज रूल्स। उस रूल को, वो रूल मेरे ऊपर भी बाइंडिंग है और वो रूल रिक्रूटमेंट बॉडी के ऊपर भी बाइंडिंग है मेलॉट। तो इसीलिए ये कहना कि मैंने वो ऑप्ट किया था और उसी के आधार पर रिजल्ट बनाया है, मेरे कहने पर भी आप नहीं कर सकते। जो बोल रहे हैं, अगर दिस सिचुएशन हैज कम इनटू प्ले ऑप्शन, अगर हमने आपको ऑप्शन सबमिट करने का बोला है तो इट इज फॉर योर ओन बेनिफिट एंड नोबडी एल्सेस बेनिफिट योर नॉट। लेट्स से ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट अगर आपको जो आपने ऑप्शन प्रेफर किया है वो नहीं मिलता है तो आपने जो सेकंड ऑप्शन प्रेफर किया, थर्ड ऑप्शन प्रेफर किया, फोर्थ ऑप्शन प्रेफर किया, आपको वो मिलेगा। इफ यू डोंट फेल इट एट ऑल देन द रूल स्पेसिफिकली सेज दैट यू डोंट फेल इट। भाई मिलेगा तो क्या है, जैसे इन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया तो इन ऑर्डर ऑफ मेरिट इफ ही क्वालिफाइज ही गेट द फर्स्ट ऑप्शन, देन ही इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सेकंड और थर्ड ऑप्शन। तो आप जिस सिचुएशन की बात कर रहे हैं वो तो दिस होल प्रोसेस को इतना chaotic बना देगा कि पहले जो जिसकी रैंक 1 आएगी, the result and the list development would be then be dependent upon the person who secured rank 1. उसके बेसिस पर बाकी की सारी लिस्ट प्रिपेयर होगी कि किसको कौन सा डिपार्टमेंट अलॉट होगा। This can never be the intention of the rules ever. But when you read the rules, अगर इसको आप छोड़ के रूल्स पढ़ोगे तो रूल सेज कि आपको कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट लेना है, उसके बाद फिर उनको होगा। The rule nowhere says that. That is the interpretation of my learned friend here. Let us see अभी। प्राप्त अंकों के आधार पर रूल 11 सब रूल 1 प्राप्त अंकों के आधार पर बनाना है आवेदित पद के अनुसार। Wait, but serial number 55